Hello friends, this is my new YouTube channel Easy Maths with ASM. So we are going to today starts our new chapter surface areas and volumes. This is our 13th chapter of NCERT Maths. So let's start. Today we will start with 13.2 exercise. Let's take our first question. A solid is in the shape of cone. A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with their both radii being equal to 1 centimeter and the height of cone is equal to its radius. Find the volume of a solid in terms of pi. So in this question we have given height and radius and we have to find the volume of a solid in terms of pi. So we will not put the value of pi, but we will take it at pi. Easy Maths with ASM chapter 13 surface areas and volumes exercise 13.2. So our first question is a solid is in the shape of a cone. पूरी देखो A solid is in the shape of a cone and with the a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter. Radii of cone is equal to 1 centimeter. Radius of hemisphere is equal to 1 centimeter and height of cone equal to 1 centimeter and the height of hemisphere is also equal to 1 centimeter. Now find the volume of solid is equal to volume of cone plus volume of hemisphere. Volume of cone का formula. Friends, there is note something. We have given height of cone, not height of hemisphere. Okay. So volume of cone का formula होता है 1/3 pi r square h प्लस 2/3 pi r क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का है 2/3 पाई आर क्यूब. नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज. वी हैव टू पुट वैल्यू ऑफ पाई ऑन टर्म्स ऑफ पाई. आर स्क्वेयर वी हैव गिवन 1 का स्क्वेयर टू 1 प्लस 2/3 पाई 1 का क्यूब. दिस इज़ 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई/3 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे हम. सेम है डिनोमिनेटर तो सीधा ही हो जाएगा. पाई प्लस 2 पाई 3 पाई/3 3 से 3 कट इज इक्वल टू पाई. This is our full question. You can take screenshot or about your choice. Now second question. Rachel, an engineering student, was worked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached to its two ends by using a thin aluminium sheet. The diameter of Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminium sheet. The diameter of model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in model that Rachel made. जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है उसकी डायग्राम कुछ इस तरह होगी. इट्स लाइक अ सिलेंडर. दिस इज सिलेंडर and
after this it has two cones. कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमने सिलेंडर रेक्टेंगल की शेप में रख दिया है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं और वर्टिकल भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. दिस इज़ द शेप ऑफ मॉडल विच रेचल हैज़ मेड. डायमीटर ऑफ मॉडल कितना है, 3 सेंटीमीटर. सो रेडियस कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर का हाफ. एंड द लेंथ ऑफ मॉडल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. Now height of cone कितनी है, 2 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ कोन 2 सेंटीमीटर है, लेकिन जो सिलेंडर है हमें लेंथ ऑफ टोटल लाइट दी गई है मॉडल की. टोटल लेंथ कितनी है मॉडल की, 12 सेंटीमीटर. और अब हमें हाइट ऑफ कोन दे दिया. हाइट ऑफ कोन यानी कि वही है लेंथ ऑफ कोन जो है 2 सेंटीमीटर. इसको ऐसे भी रख सकते हो आप, या फिर ऐसे भी कह सकते हो. सॉरी, ये इस तरह नहीं. देखिए ये जो चीज़ है वो हमारा रेडियस आएगा, इसलिए जो हाइट ऑफ कोन होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा. तो इधर 2 सेंटीमीटर है और इधर भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर है. तो हम टोटल हाइट है हमारे पास 12 सेंटीमीटर. तो हम 12 में से 2 + 4, तो हम 12 में से 4 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास. सो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन कितनी होगी, टोटल है हमारे पास 12 माइनस हम कर देंगे 2 + 2, ये जो है हाइट ऑफ कोन है. तो फिर 12 - 4 कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर. नाउ वी विल फाइंड वॉल्यूम ऑफ मॉडल. हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल कितना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस 2 × वॉल्यूम ऑफ कोन. इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है. 2 × वॉल्यूम ऑफ कोन हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास 2 कोन्स गिवन है, तो हमने कर दिया 2 × वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन का क्या फॉर्मूला होता है, πr² h प्लस 2 × वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ कोन का कितने क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 πr² h. ओके, पाई हम कितना लेंगे, 22/7. हमारे पास है r², हमारे पास कितना है, r 3/2 का स्क्वेयर, 3/2 का स्क्वेयर इंटू h कितना है हमारे पास, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन. सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट है हमारे पास 8 सेंटीमीटर प्लस 2/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है हमारे पास, सेम है, रेडियस कितना है, 3/2 इंटू 3/2. हाइट हमारे पास, कोन की हाइट कितनी थी हमारे पास, 2 सेंटीमीटर. ओके, सो हमारे पास हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये प्लस का साइन है और इनके बीच क्या चीज़ हमारे पास कॉमन आ रही है. देखिए 22/7 कॉमन आ रहा है, 22/7 22/7. 3/2 हमारे पास कॉमन है, इंटू 3/2 इंटू 3/2. कुछ और कॉमन आ रहा है, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कुछ और कॉमन आ रहा है. तो हमारे पास यहाँ पर रह गया 8, ये 2/3 है, 8
प्लस 2/3, 22/7 कॉमन आ गया, 3/2 बार कॉमन आ गया और यहाँ पर रह गया हमारे पास 2। सो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 11 कुछ और कट होगा, नो, 11/7 एंड दिस इज़ 9/2। सो ये है हमारे पास 8 प्लस 2 × 2 4/3, 11/7 इंटू 9/2। एलसीएम ले लेंगे, 3 ये 4, 8 3 ज़ार 18 16 24, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 99/14। मल्टीप्लाई में जो ब्रैकेट के बाद चीज़ होती है वो हमारे साथ ब्रैकेट के साथ क्या होती है, मल्टीप्लाई। 24 + 4 28 एंड दिस इज़ 3। सो नाउ मल्टीप्लाई इट, दिस इज़ 14 1 पर गया, 28 2 पर गया, 3 ये 19 99 9 गया 3 पर और ये भी गया 3 पर। सो 33 × 2 कितना आ जाएगा, 66 सेंटीमीटर क्यूब। इस चीज़ को हमने माइंड में रखना है कि जब हमें वॉल्यूम दी गई है तो हमने उसकी पावर कितनी रखनी है, क्यूब में। और कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि यूनिट नहीं लगाते हैं। अगर आप यूनिट नहीं लगाओगे तो आपके हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सो कीप दिस इन योर माइंड। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। सो नाउ यू कैन सी फुल क्वेश्चन एंड सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो नाउ यू कैन सी फुल क्वेश्चन, you can take screenshot or otherwise it's your choice. Now we take our third question. A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. जो गुलाब जामुन है उसका जो मटेरियल है वो अलग है, लेकिन जो उसमें सिरप है वो उसकी वॉल्यूम का 30% है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। हम पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर हम पता करेंगे कि 45 गुलाब जामुन में जो 30% सिरप है वो कितना होगा। ईच शेप्ड लाइक सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो गुलाब जामुन है मोस्टली क्या होता है, गोल सर्कल शेप में होता है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, विद द सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। कैसी शेप है अभी हम देखते हैं। ये सिलेंडर हो गया और इसकी साइड्स पर बोथ एंड्स पर क्या है, हेमिस्फेयर है। जैसे आप कोई भी कैप्सूल की शेप कह सकते हो, तो कैप्सूल की शेप में जैसा एक गुलाब जामुन है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो लेंथ और डायामीटर है, स्फेरिकल पोर्शन और सिलेंड्रिकल पोर्शन, दोनों का लेंथ 5 सेंटीमीटर है और डायामीटर हमें दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर। हेमिस्फेयर का जो डायामीटर है वो कितना है, 2.8 सेंटीमीटर, जो कि ये वाली चीज़ होगी। ओके, दिस इज़ डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर एंड लेंथ हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर। सारा जो गुलाब जामुन का पोर्शन है, हेमिस्फेयर एंड सिलेंड्रिकल पोर्शन बोथ, दोनों की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। आगे हम देखते हैं डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर। दोनों का ही वैसे हमें डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना है देखते हैं। डायमीटर हमें सेम दिया गया है, कितना है, 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। सो हमारा जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, 2.8 का हाफ, यानी कि 2/8/2 एंड दिस इज़ 10। कट दिस 14 over 10 इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। इसे आप फ्रैक्शन में रखना चाहते हो फ्रैक्शन में रखिए, पॉइंट में रखना चाहते हो पॉइंट में रखिए। दिस इज योर चॉइस हाउ टू सॉल्व योर क्वेश्चन। नाउ लेंथ ऑफ गुलाब जामुन, पूरी जो गुलाब जामुन है उसकी हमें लेंथ कितनी दी गई है, लेंथ ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन, जो हमें हेमिस्फेयर दिया गया है, हेमिस्फेरिकल पोर्शन, उसकी लेंथ कितनी होगी वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो डायमीटर है वही उसकी लेंथ है,
वो उसकी क्या होगी, डायमीटर हो गया इसका हेमिस्फीयर का। और जो इसका रेडियस है, मान लीजिए ये जो इसका रेडियस है यही इसकी लेंथ होगी, हाइट सेम होगी। एम आई राइट और नोट? ओके। सो जो इसका लेंथ हो गया हेमिस्फीयर का वो किसके इक्वल होगा, इक्वल टू इट्स रेडियस। एंड वी नो रेडियस ऑफ बोथ हेमिस्फीयर एंड सिलेंड्रिकल पोर्शन, दोनों का रेडियस कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। सो नाउ लेंथ ऑफ सिलेंडर, पहले हमने लिया पूरे लेंथ ऑफ गुलाब जामुन, फिर लेंथ ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन इक्वल टू इट्स रेडियस। नाउ लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन कितना होगा, टोटल कितना था हमारे पास लेंथ, गुलाब जामुन का टोटल लेंथ था हमारे पास 5 सेंटीमीटर, माइनस हम कर देंगे 1.4 प्लस 1.4। देखिए वही सेम थिंग है कि हमने पहले हमारे पास 2 कोन थे और अब हमारे पास 2 हेमिस्फीयर आ गए हैं, तो हमने वैसे ही किया 1.4 प्लस 1.4, तो हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस कितना हो जाएगा 2.8, 5 माइनस 2.8 कितना आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। नाउ वी विल फाइंड वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। वैसे तो हमें कितनी वॉल्यूम पता करनी है 45 गुलाब जामुन की, लेकिन हम पहले पता करेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन में हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई लिखने में। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ किसका, हेमिस्फेरिकल पोर्शन। ओके, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वेयर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सो हम यहाँ पर सीधा साधा वैल्यूज़ पुट कर देंगे, इधर कर लेते हैं। ये है, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं 22/7 जो कि पाई है, और रेडियस सेम है दोनों की, कितना है रेडियस 1.4 सेंटीमीटर। सो 1.4 का स्क्वेयर। ओके, एंड हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन यानी कि लेंथ उसकी कितनी है 2.2 प्लस 2 इंटू 2 4/3 एंड 22/7, और यहाँ पर रेडियस जो है 1.4 का क्यूब। क्वेश्चन को सॉल्व इजीली करने के लिए हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास वैल्यूज़ कुछ वैल्यूज़ सेम है तो हम उनमें से कॉमन ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ से हम कॉमन किस तरह लेंगे 22/7, और ये 1.4 का क्यूब है, यहाँ पर 1.4 का स्क्वायर है, तो हमारे पास 1.4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास कॉमन आ गई, और ये 2.2 हम यहाँ पर ले लेंगे, और ये है 4/3। यहाँ पर हमने 1.4 का स्क्वायर लिया है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास 1.4 बच जाएगा। ओके, सो दिस इज़ 22/7 एंड 1.4 का स्क्वायर करेंगे हम, कितना होगा, हम क्या करते हैं 1.4 को ऐसे ओपन कर लेते हैं, तो इसका पॉइंट हटा देंगे, नीचे आ जाएगा 10, ये भी 14/10 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़
दिस इज़ 22/10 प्लस 4/3 इंटू 14/10। तो क्या होगा, 7 से 14 का 2 ये आ गया 2, और ये 7 और ये 5 आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा, और ये 11। और कुछ कट हो रहा है यहाँ पर? नो। यहाँ पर क्या कट होगा, ये हमारे पास 10 है, तो हम इसको इजीली करने के लिए क्या, इसको वैसे का वैसे ही रख लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 11 इंटू 2 22 एंड 22 इंटू 7 कितना होगा, एक मिनट, हम या फिर ऐसे करते हैं, 22/5 इंटू 7/5। एलसीएम लेंगे, चलो एलसीएम बाद में लेते हैं हम एक बार। ये हो जाएगा 22/10 प्लस ये हो जाएगा 14 ये 3 इंटू 10 मल्टीप्लाई किया हमने 30, और ये क्या हो गया हमारे पास 14 इंटू 4 कितना हो, दिस इज़ 56। एंड आगे कर, अब हम आगे आते हैं, हमारे पास कितना था 22 इंटू 7, तो 7 2 ज़ार 14, 7 2 ज़ार 14, और ये हो गया 154/25 इंटू, ये ब्रैकेट में हमारे पास कितना था 10 इंटू 30, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 30। ये 56 वैसे का वैसे, तो ये इधर था 22 इंटू 3 कितना हो जाएगा 66। ये टोटल करके हमारे पास ये आ गया हमारे पास 154/25, एंड दिस इज़ कितना हो जाएगा 122/30। कट हो रहा है, कर देंगे, कट होता है तो कर दो, सोचो मत। 12 6 और ये 1, 61/5 हो गया। तो जस्ट सीधा साधा हम इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 9394/375। ये आ गया आंसर। इज इट ओके? नो, क्योंकि हमारे पास हमने सेंटीमीटर क्यूब नहीं लगाया, जिसका हमारे पास हाफ डिडक्ट हो सकता था। सो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन हमारे पास कितना आ गया 9394/375 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुई थी, कितना है 45 इंटू 9394/375। तो यहाँ पर हम कट कर देंगे जो हो रहा है, ये 45 3 पे कट कर रहे हैं हम, ये 45 गया, ये जाएगा हमारा, नहीं ये हमने 5 पे कट कर रहे हैं हम, ये 9, और इसको कट किया कितना आ जाएगा 75, और फिर हम इसको करेंगे, ये किस पर जाएगा 3 पर जाएगा, 6 गया कितने पर 2 पर, 15 गया 5 पर, और ये कट करके क्या आएगा 3। कटिंग आपको पता है आप किस हिसाब से करते हो, तो ये हमारे पास कट करके आ जाएगा 9394/25 इंटू 3 सेंटीमीटर क्यूब। आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो मल्टीप्लाई कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। अब आगे हम क्या पता करेंगे कि हमें पता करना था वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन में सिरप की वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम ऑफ सिरप किसमें, इन 45 गुलाब जामुन, ओके। तो क्या होगा, कितना था हमारे पास 30%, 30% का क्या हो जाएगा 30/100,
100। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कितना है 9394/25 इंटू 3। सो 0 से 0 कट, और इसके आगे क्या होगा, इसको हम कर देंगे 3/10 है, तो ये सारा मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ जाएगा 84546/250। कितना होगा टोटल 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया जी हमारे पास 30% ऑफ सिरप वॉल्यूम इन 45 गुलाब जामुन्स। ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड। एक पेन स्टैंड है जो किस मटेरियल का है, वुड का बना हुआ है, इज़ इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की शेप में है, ये आपके सामने है पेन स्टैंड, ये क्यूबॉइड की शेप में है, विद 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। इसके अंदर 4 कॉनिकल डिप्रेशंस हैं, डिप्रेशंस यानी कि उसमें से 4 कॉन्स का जो मटेरियल है, वुड है, वो रिमूव कर दिया गया है। तो द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर, डायमेंशंस यानी कि उनकी जो साइड्स हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, वो हमें दी गई है 15 सेंटीमीटर, 10 एंड 3.5, यानी कि लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट हमें क्यूबॉइड की दी गई है। रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन इज़ 0.5 सेंटीमीटर। जो इसके क्यूबॉइड के अंदर जो डिप्रेशंस है उसकी हमें जो रेडियस है वो कितना दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर, एंड द डेप्थ इज़ 1.4 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी जो हाइट है। हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ एंटायर स्टैंड। पहले जो हमारे पास क्यूबॉइड दिया गया था उसमें से हम जो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन से निकाले गए हैं, हम उसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी कि वॉल्यूम ऑफ एंटायर स्टैंड आ जाए। लेट्स स्टार्ट आवर फोर्थ क्वेश्चन, जो कि जिसकी हमें लेंथ कितनी दी गई है, हमें लेंथ दी गई है किसकी, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी है 15 सेंटीमीटर, एंड वही है कि ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। देखिए, जब आप रफ को वर्क करते हैं तो आप ऐसे इन्वर्टेड ऐसे कॉमर्स लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे पेपर में मत यूज़ करना, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, फिर आप बाद में सोचोगे कि हमारी क्या गलती रहेगी कि हमारे मार्क्स डिडक्ट हो गए। और रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन हमें कितना दिया गया है, रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन कितना है 0.5 सेंटीमीटर, और हमें उसकी दी गई है डेप्थ ऑफ ईच डिप्रेशन, यानी कि उसकी हाइट जो है कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। दिस इज पॉइंट थोड़ा गलत हो गया था। नाउ वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड, जो बाकी का स्टैंड जो बचा है उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशंस। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशंस। 4 डिप्रेशंस क्यों, क्योंकि हमारे पास 4 कॉनिकल डिप्रेशंस है, किसके लिए, 4 पेन्स की रखने के लिए। तो 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। एल हमारे पास कितना है 15, 10 एंड दिस इज 3.5 माइनस 4/3 हो जाएगा, दिस इज 22/7, एंड आर हमारे पास कितना है 0.5, यानी कि 5/10, दिस इज 5/10,
एंड हाइट कितनी है हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर, यानी कि 14/10 हो जाएगा। 1, दिस इज़ 2, 1, 2, दिस इज़ 7, दिस इज़ 5। कुछ और कट हो रहा है यहाँ पर, तो आगे क्या है हमारे पास, यहाँ पर कुछ और कट होगा, हम आगे देखते हैं। 15 × 10 × 35/10 माइनस 4/3 × 22/7, दिस इज़ 1117 ओवर कितना हो जाएगा 2 × 2 4, 4 × 5, दिस इज़ 20। देखिए यहाँ पर 7 से 7 सीधा कट हो रहा था, हमने पहले ध्यान नहीं दिया। और यहाँ पर क्या है 20 है, ये 10 हो जाएगा और ये 11। दिस इज़ 5 पर गया 2 एंड दिस इज़ 7। ये 2 से हमने यहाँ पर काट दिया, यहाँ पर आ गया 5। 15 × 5 कितना हो जाएगा 7 × 5 35 एंड 35 × 15 5 2 5, ओके। माइनस 4/3 है और ये हमारे पास सारा फिर कितना आ जाएगा 22/15 आ जाएगा हमारे पास, ओके। सो सिंपली एलसीएम लेंगे, 15 एलसीएम लेंगे, ये 22 वैसे का वैसे, 5 2 5 × 15 कितना आ जाएगा 7875। और ये कितना हो जाएगा फिर 7853/50। कुछ कट हो रहा है, नो, सीधा डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज़ आवर 4th क्वेश्चन, दिस इज़ फुल क्वेश्चन। हमने क्या पता करना था, वॉल्यूम ऑफ एंटायर स्टैंड। हमने पहले जो हमें दिया गया था, जो हमारे पास गिवन था, क्वेश्चन स्टार्ट करते वक्त हम ध्यान रखते हैं जो हमारे पास गिवन है, फिर जो हमने पता करना है वो बस निकालेंगे। फॉर्मूलाज आपके टिप्स पर होने चाहिए। दिस एक्सरसाइज, दिस फुल चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज। अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं तो आप कर सकते हो, अदरवाइज यू कांट डू एनीथिंग। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं आते तो आप अप्लाई क्या करोगे, यहाँ तक करके छोड़ दोगे, आगे फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर सकते आगे। इसलिए मैं जल्दी ही आपके लिए एक फार्मूला शीट रेडी करूँगा, तो आप जल्दी से जल्दी फार्मूलाज रेडी कीजिए अपने। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड if you have any problem, any doubt, you can comment in comment box. I will try to help you in any situation. Friends, if you have any problem in understanding or if any problem in video, then you can help me in comment box. I will try to improve my mistakes, please. And after all, please like my videos, share and subscribe my channel. Thank you.